अवर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, बट बिफोर गोइंग टू द न्यू टॉपिक वी विल डू सम न्यूमेरिकल ऑफ टॉपिक सर्कुलर मोशन। So let's solve the numerical. So all of you revise your topic. Have you revised? Yes, sir. Okay. Let's move to the topic. Write down the numerical. Write down. Let's do fast. A simple pendulum. I am writing here. A simple pendulum is constructed by a simple pendulum is constructed by attaching a bob of mass m, okay, to a string of length capital L, fixed at its upper end, to stop. The bob oscillates in a vertical circle it is found that the speed of the bob is v, small v, okay. When the string makes an angle theta, remember this speed is when the string makes an angle theta. When the string makes an angle theta, will stop with vertical will stop. Find the tension in the string. Find the tension in the string. Find the tension in the string at this instant. So now you have to solve this question and tell me the answer. I am giving you 5 minutes. If you are not able to solve, then I will tell you how to solve. Okay? Just time start now. It's okay. No, you can solve. Solve it. Shubham, do you understand the question? Actually, the in question what is saying, एक simple pendulum है, is constructed by attaching a bob of mass m to a string, right?
ओके, वीडियो को पॉज करें आप लोग और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जस्ट ट्राई। एक बार कोशिश तो करके देखें कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद हम बैठे, क्यों बैठे, इसलिए बैठे। ओके, ट्राई स्टूडेंट्स, यू हैव 5 minutes and you should solve. Try. It's good. I'm just telling you the what question is saying. A simple pendulum is constructed by attaching a bob of mass m. क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन आए हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, ठीक है। पढ़ो पहले क्वेश्चन को 2-3 बार, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्या है, एलटी जेई की प्रॉब्लम्स है, ये एकदम से आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर, यू कांट सॉल्व इन वन टाइम, यू नीड टू read the question again and again in order to extract the information well. Clear, 2-3 बार इसको पढ़ो ताकि इस क्वेश्चन से ज्यादा इंफॉर्मेशन को निकाल सको। क्लियर, आप पढ़ो इसमें क्या कह रहा है। एक सिंपल पेंडुलम है which is constructed by attaching a bob of mass m to a string of length l. Fixed at its upper end, the bob oscillates in a vertical circle. It is found that the speed of the bob is v when the string makes an angle theta with a vertical. Clear? Find the tension in the string at this end. Can I rough? Now you will see a question is saying that this is a fixed support to which there is a spring and there is a bob. Clear? Question is saying bob is moving in a vertical circle. What do you mean by vertical circle? First of all tell me, Shivam, what do you mean by vertical circle? What do you mean by horizontal circle? Tell me. Anything which is moving horizontal like this manner, like this manner. Clear? So this is horizontal, but like our clock is moving in this manner. Okay, so it is traveling this circle. This is a vertical circle. Some, if object is moving in this manner, then this is the horizontal circle. Clear? Now what question is saying, at certain instant of time, at certain instant of time bob is moving in this manner, in this manner. At certain instant of time bob is making an angle theta, and at this instant the velocity is v. So speed. At this instant the velocity is v because bob is moving in this manner. क्वेश्चन को पढ़ो 2-3 बार। क्वेश्चन, इसका बॉब का मास क्या है, m. दिस इज द बॉब. बॉब मींस फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड मास। क्लियर, हैवी मास। एक्सपेरिमेंट किया होगा आप लोगों ने, किया था? Yes sir. ओके, अब देखो सबसे पहला काम क्या है, इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी लॉज ऑफ मोशन प्रॉब्लम, पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वर को डिसाइड करना। क्लियर, अगर ऑब्जर्वर नहीं बताया क्या करोगे? If observer is not giving, then you have to assume inertial frame. बताया था कि ऑब्जर्वर नहीं दिया तो कहाँ मानेंगे, inertial frame में। तो ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वर। क्लियर, दिस इज माय ऑब्जर्वर। हु इज ऑब्जर्वर? हु इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट? हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ये है। नाउ सेकंड स्टेप क्या था, मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। Then you need to make a free body diagram of this bob at this instant. Consider this bob. Our system is this bob. This is our system. Clear, Shom? Clear हो रहा है? Now consider this bob to be our system.
Now take this bob to be as point. इस बॉब को हमने किससे डिनोट किया है? पॉइंट से. क्लियर? mg is the weight of the bob which is acting downwards. Now you can see tension in this manner. ऐसे लग रहा है टेंशन. टेंशन कैसे लगेगा? You can see mg and tension. This is theta. If I am moving that in that manner, then this is also theta. I am making a game. Okay. First of all, I am just showing here. This is theta. Then this is mg. You can move it here. This is tension. Clear? This is tension. If this is theta, then this is also theta. Clear? Why? Like if I move it here, and this is my center of mass, and I am moving here. This is theta, then this is also theta. Because why? Not vertically opposite angle. If two lines are parallel, then alternate angles are equal. These two lines are parallel, then this angle is equal to this angle. This length and this length, I am taking the dots. You can see this length is parallel to this length, so the alternate angles are equal. I am showing here. Clear? Now this is my bob. I can take this back to dot line. Clear? If this is theta and this is also theta, vertically opposite angle. This is mg, then this is mg cos theta, and this is mg sin theta. So remember, this component of the force which is acting tangentially, our system is moving in a vertical circle, then this component of the force which is acting in this manner tangentially, mg sin theta, and t minus mg cos theta is acting towards center. This is the reason if mg cos theta is greater than t, then it can't move in a circular manner. Clear? Now we need to what we need to do. mg sin theta is responsible for bringing the bob to its initial position. mg sin theta ही है जो आपको आपका जो बॉब है उसको अपनी इनिशियल स्टेट पे ला रहा है. You can see. Okay. और ये जो फोर्स लगा है t माइनस mg cos थीटा, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है. ठीक है? अब देखो सेकंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप क्या है? व्हाट इज थर्ड स्टेप? अप्लाई फोर्स बैलेंस. क्लियर? अब मुझे फोर्स बैलेंस करना है. इस डायरेक्शन में मेरा कोई फायदा नहीं है, मुझे टेंशन निकालना है. तो मैं इसमें कर दूं रेडियल. तो क्या होगा? देखो ये नेट फोर्स in along radial is equal to mass time acceleration in. ठीक है? एक्सेलरेशन. अब देखो नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन क्या होगा? टेंशन माइनस mg cos थीटा. यही तो होगा. इज इक्वल टू मास ऑफ बॉब m into acceleration of what? Bob. Since this net force is acting towards center, then which acceleration it will have? Centripetal acceleration, v square upon r. Clear? Is it clear? So I am balancing along radial, that's why I am taking the radial acceleration. So t minus mg cos theta is equal to mv square upon r. So our tension is equal to mg cos theta plus mv square upon r. So t we can we write this to be the mr omega square? Can I write? Tell me. mg cos theta
Can I take mg cos theta common? Cut. Cos theta plus mv square upon r. I can do. You can also do. Because it's first time, you can also do. Just try. Just tell me, Shubham, what is the radius? Radius L. Very good. Mg cos theta plus mv square divided by r. R is L. so this is our required result which we need to obtain. Note it down. You can note. Clear? You can note. Why are you sitting silently? After that, one more question. So in this manner you need to solve. I will give you one question which you need to solve and I will check your approach. Okay. Just note it down then fast. Yes. Is it over? Okay. So write down another question. Write down in a rotor. In a rotor. In a rotor, a hollow vertical. Question है. In a rotor, a hollow vertical structure in a rotor, a hollow राइटिंग पे मत जाना मेरी समझ में आना चाहिए ठीक है मेन चीज वही है ए हॉलो वर्टिकल cylindrical structure rotates about its axis rotates rotates about its axis and a person rests and a person rest against the inner wall against the inner wall full stop at a particular speed of the rotor at a particular speed of the rotor at a particular speed of the rotor the floor below the person the floor below the person is removed clear and the person hangs and the person hangs resting against the wall
resting against the wall without any floor. Without any floor, full stop. If the radius of the rotor, if the radius of the rotor, if the radius of the rotor is 2 meter, clear? And the coefficient of static friction, ऐसे क्वेश्चन आता है एडीजी में, and the coefficient, लेकिन क्वेश्चन आसान होते हैं, and the coefficient of static friction is between the wall and the person, between the wall and the person is 0.2. Clear? We'll stop. Find the minimum speed. Find the minimum speed at which the floor may be removed. At which the floor, ये क्वेश्चन लग रहा है बड़ा लेकिन बहुत आसान है, समझो पहले। आईआईटी जेई का प्रॉब्लम है, क्लियर? क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है। ये नोट हो गया? ओके। क्वेश्चन कह रहा है इन ए रोटर अ हॉलो वर्टिकल, चलो पहले मैं आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद मैं एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है? उस फिगर से आप लोग क्या है क्वेश्चन को अच्छे समझ लोगे, क्लियर? ओके। कैन आई रफ? शुभम कैन आई रफ? अब तो फिगर बना लो ये वाला, no, write down, focus on your word, okay? You need to focus on your work, and when I'm saying anything you should be focused here, clear? So you can see this is our rotor, this is the rotor, clear? सर रोटर क्या होता है? रोटर नहीं समझते? कभी घर में वो देखा तुम लोगों ने? Have you seen मिक्सी? हाँ, seen मिक्सी, जैसे ये रोटर घूमता है, ये जो चीज that is rotor, rotates, clear? मोटर के अंदर भी रोटर होता है, इस फैन के अंदर भी रोटर है। विदाउट रोटर हाउ कैन यू मूव एनीथिंग? किसी रोटर के बिना आप किसी को कैसे मूव करा सकते हो? कैन यू मूव? टेल मी। नो।
चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो शुभम। In a rotor, a hollow vertical cylinder structure rotate about its आप axis. देखो, कभी आपने मिक्सी देखी है? मिक्सी में भी क्या होता है, आप एक वो रखते हो, रोटर रखते हो ना, कि हॉलो सिलेंडर रखते हो, नहीं रखते? जो रोटर कौन होता है, जो घुमाता है, हॉलो सिलेंडर रखते हो रोटर के ऊपर, तभी तो घूमती चीज। इमेजिन कर रहे हो क्वेश्चन को? आप मम्मी क्या करती है आप लोगों की, ऐसे लाती हैं, जो हॉलो सिलेंडर होता है कोई बर्तन, उस पर सेट कर देती है रोटर पे, क्लियर? वो घूमता है, रोटर की हेल्प से हॉलो सिलेंडर घूम रहा है। आगे पढ़ो। And a person rest against the inner wall. एंड ए पर्सन, ये पर्सन हो गया, दिस इज अ पर्सन, ये पर्सन है। आगे पढ़ो। At a particular speed of the rotor, the floor below the person is removed and the person hand resting against the wall without any floor. तो मैं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए रोटर a hollow vertical cylinder structure rotates about its axis, and a person rests against the inner wall at a particular speed of the rotor, the floor below the person is removed and the person hangs। मतलब जैसे ही रोटर को रखा तो क्या होगा, जो नीचे वाला फ्लोर है वो हट जाएगा। इमेजिन करो कि एक बड़े से बर्तन में आप बैठे थे, क्लियर, फ्लोर पे, आपको ले जाया गया उठा के, मान लीजिए शुभम आपको, ठीक है, आप एक बड़े से बर्तन में आपको ले गया उठा के, अभी जब तक फ्लोर पे हो, क्लियर है? समझ लो, क्वेश्चन समझाने का तरीका है। आपको उठाया मैंने, रोटर पर रख दिया, क्लियर? जैसे ही रोटर घूमा, नीचे का हिस्सा क्या हुआ, फ्लोर, ये ना जो नीचे वाली प्लेट थी हट गई, तब भी आप उसमें लटके रहे, गिरे नहीं नीचे। ग्रेविटी तो आपको गिरा देती, लेकिन फिर भी आप लटके रहे, ऐसा क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। आपने देखा होगा कोई चीज बहुत तेजी से घूम रही है ना, एक ऐसे बर्तन में चले जाओ जो चीज बहुत तेजी से घूम रही है, तो आपको नीचे सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों? और ये इससे चिपका रहेगा, ये वॉल है ना, इनर वॉल्स, इससे चिपका रहेगा और गोल गोल घूमेगा रोटर के थ्रू। भले ही नीचे का हिस्सा, उसने बोला फ्लोर इज रिमूव्ड, बोला है नहीं बोला? तो ये जो पर्सन है ये इनर वॉल है, क्या है? इनर वॉल, इनर वॉल। याद आ गया मुझे पर्सन है क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन है। और एक चीज और, उसमें ये बोला है कि वॉल और पर्सन के बीच में क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है, ये भी बोला है। तो ये पर्सन गिरा क्यों नहीं, ऐसा क्या रीजन है? पर्सन इज नॉट व्हाट, नहीं फेविकॉल नहीं है इसमें, समझो, इट्स नॉट अ मैजिक ऑफ फेविकॉल, इट्स अ मैजिक ऑफ साइंस, फिजिक्स, व्हिच यू आर स्टडीइंग। सर्कुलर मोशन पढ़ा है, वो ही मैजिक है, और कुछ मैजिक नहीं है। पहला क्या है, ऑब्जर्वर डिसाइड करना, बताया था। सेकंड स्टेप क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस पर्सन को मान लो, हमारा सिस्टम एक पर्सन है, क्लियर? इसको मान लो एक सिस्टम, अपना सिस्टम कौन है, एक पर्सन, तो इसी को सिस्टम मान लो। दो सिस्टम कैसे मान रहा हूं, देखो ध्यान से, ये डॉट डॉट लाइन से पर्सन के अराउंड लगा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा सिस्टम कौन है, ये है मेरा सिस्टम, और कुछ नहीं, मैं कुछ किसी को भी नहीं देख रहा, आई एम लुकिंग ओनली दैट पर्सन, सो दैट इज माय सिस्टम। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व एनी लॉस ऑफ मोशन प्रॉब्लम। सो वी डिसाइड द ऑब्जर्वर, आवर ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दिस इज आवर ऑब्जर्वर, हु इज ऑब्जर्विंग दिस, दिस इज आवर सिस्टम, Yes. This is a person who is leaning against the wall. ये इनर वॉल है हमारा, ये पर्सन इससे चिपका हुआ गोल गोल घूम रहा है रोटर के थ्रू। समझ आ गया? इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा लगेगा, देखो, वेट नीचे लगेगा, Yes, yes. mg, क्लियर? और ऊपर क्या लगेगा, मैंने बताया था, फ्रिक्शन फोर्स, fs। तो ये फ्रिक्शन का भी इसको, इसके नीचे वाले फोर्स को देखो, ये चिपका हुआ मतलब ये रेस्ट पर है ना, मतलब चिपका हुआ है, नेट फोर्स क्या रहेगा वर्टिकल में, जीरो। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन इतना पावरफुल है कि इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, यानी ये जब चिपकेगा ना तो इसका वेट इसको नीचे ले जा रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज द रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन।
तो इसकी टेंडेंसी क्या है, नीचे जाने की। फ्रिक्शन का लगेगा ऊपर, स्टैटिक एफएस। क्लियर? स्टैटिक लगा भाई, स्टैटिक, क्योंकि मूव थोड़ा ना कर रहा है ऊपर हम्म। नीचे। इतना समझा है? देखो ये हमारा क्या रहा, दोबारा समझो। ये मेरा रहा पर्सन जिसपे mg वेट लग रहा है नीचे और fs ऊपर लग रहा है। क्लियर? अब एक चीज बताओ, ये जिस बॉल से टकराया हुआ है, ये बॉल क्या देगी इसको? नॉर्मल। नॉर्मल, हाँ, इस नॉर्मल रिएक्शन देगी ना, देगी, कांटेक्ट फोर्स लगाएगी। यस, इस कांटेक्ट फोर्स की वजह से गोल गोल घूम रहा है, समझा है? अब नेट फोर्स बैलेंस कर दो, y में तो जा नहीं रहा कहीं भी, तो y में क्या होगा, fs इज इक्वल टू क्या होगा, mg इक्वेशन, और fs क्या होता है, म्यू s इनटू n, इज इक्वल टू mg इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, क्लियर? yeah, हाँ, समझा आप लोगों को? सो नाउ लुक एट द फिगर अगेन। I apply the Newton's law in this direction vertical. Now I will apply the Newton's law in horizontal direction. So net force in x direction, or you can say radial, that would be good, is equal to mass time acceleration in radial direction. So net force क्या लग, यानी तो लग रहा है, is equal to mass time acceleration क्या होगा, v square upon r। हाँ, ये r क्या होगा, इसका जो किया हुआ रेडियस, इक्वेशन 2। क्लियर? Now put the value of n in equation first. इस वैल्यू को उठाओ, इसमें रखो, कि क्या निकालना था आपको, फाइंड द मिनिमम स्पीड। तो आपको क्या मिल जाएगा, v का वैल्यू मिल जाएगा। देखो भी रिमूव, म्यू एस एन, एन के वैल्यू क्या रखोगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, एम जी तो है। क्लियर? क्लियर? नाउ सी, m से m कैंसिल हुआ, m कैंसिल आउट, यस, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन m। v इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट आर जी अपॉन n, अपॉन m। क्लियर? समझा? अब मुझे इतना बताओ कि अगर मैं वैल्यू जैसे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता, अच्छा आर जी अपॉन एम आएगा या एम कैसा आएगा, म्यू आएगा, सॉरी म्यू, आर जी अपॉन म्यू आएगा, क्योंकि म्यू दिया है ना, म्यू एस, सॉरी। अच्छा क्वेश्चन में अगर ये सारी वैल्यू नहीं देता ना, तो आंसर क्या होता हमारा, अंडर रूट आर जी डिवाइड बाई म्यू एस। दिस वुड बी द मिनिमम स्पीड। इस स्पीड से अगर रोटर मूव करेगा तो ये जो पर्सन है कभी गिरेगा नहीं नीचे। भैया पर वो क्वेश्चन में तो ये कह रहा है एट विच द फ्लोर मे बी रिमूव्ड। हाँ, मे बी रिमूव, और हो या ना हो, लेकिन इस स्पीड से चलेगा अगर रोटर। क्लियर? मे बी रिमूव, हम तो मानते हैं रिमूव हो भी जाए। अगर रोटर को आप इस स्पीड से घुमाओगे, एक पर्सन कभी नीचे नहीं गिरेगा। और या इस स्पीड से घुमाओगे तो वो नीचे वाला गिर जाएगा। हाँ, नीचे वाला मे बी रिमूव, तभी तो कह रहा है क्वेश्चन में मे बी रिमूव। ऐसा हो सकता है नीचे वाला गिर जाए। क्लियर? बट ये पर्सन नहीं गिरेगा। अब आपको क्वेश्चन में आर दिया है, जी दिया है, म्यू एस दिया है, बताओ मुझे वैल्यू क्या है। भैया आर, हाँ, आर दिया है 2 मीटर, हाँ, और जी की वैल्यू 9.81, और म्यू एस की वैल्यू कितनी दी है, 0.10 लगा दो, 10 लगा दो ये। हाँ ठीक है, और म्यू एस की वैल्यू कितनी दी है, भैया 0.2, 0.2। चलो 10 लगा दो ये हो गया 10 आ गया, तो v की वैल्यू क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड है। आप 9.81 मतलब 10 मान लो तुम, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड से आपको इस रोटर को, ये रोटर दिख रहा है ना आपको, हाँ, ये आपका रोटर है। इस रोटर को, ये इसकी एक्सिस होगी रोटर की, ये क्या है रोटर की एक्सिस। क्लियर? इस रोटर को आपको इस स्पीड से घुमाना है। क्लियर? ये इस स्पीड से, जिस ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ से आर ओमेगा निकालोगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटर घूमेगा, हाँ, v निकल जाएगा। क्लियर? तो ये मिनिमम स्पीड होनी चाहिए जिससे आपका क्या हो, बंदा जो भी इंसान है वो कभी गिरेगा। क्लियर? So it's a very important problem which I told you. These two problems comes in IIT JEE.
एंड अगर आप ऐसी प्रॉब्लम कर मतलब सीख गए करना, और आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि आप लोगों का एग्जाम हुआ था एंड यू डिड वेल। आज आपका एग्जाम हुआ है, कैसा हुआ एग्जाम आपका? तो यही चीज है, आप लोगों को क्या पढ़ाया गया यहाँ पे बताओ? यहाँ सिर्फ सब कुछ भी पढ़ाया गया और यहाँ सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाया गया आपको। मैंने कहीं भी आपको डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ाया, सिर्फ क्या पढ़ाया? कंसेप्ट। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन से बच्चे डर जाते हैं, ये देखते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है भैया कैसे होगा, लेकिन क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ था? नथिंग इन दिस क्वेश्चन इज, एवरीथिंग इज इजी। व्हाई? क्यों इजी है? कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन कठिन भी होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छा है, सिंपल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोगों ने क्या कहते हैं कंसेप्ट पर फोकस नहीं करा, बट यू पीपल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। कुछ नहीं करना, सिस्टम डिसाइड कर ही लिया, ऑब्जर्वर डिसाइड कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देन अप्लाई फोर्स बैलेंस। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी जो आवाज़ है लोगों तक पहुँचे और वो भी कुछ सीखें। हमारा मेन फोकस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, क्वालिटी एजुकेशन को गेन करें। इस बोर्ड पर आपको राइटिंग भले ही ना समझ में आए, अच्छी क्लियर ना हो, राइटिंग ना दिखे, लेकिन कंसेप्ट पर फोकस करिए, ठीक है? जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ओके?